Good morning, my dear students. Welcome back again for our today's lecture. So, it is a lecture for class 5, subject English reader of your book Essence, chapter number 5, lecture number 1. And you know very well the lesson name is The First Man in a Space. Okay, so it is a lecture number 1. And today we will be reading this lesson, and along with this we will be doing word meaning. Okay beta, so first of all I'll start this lesson with word meaning, and then it will be followed by explanation, and in the end you will get your homework. So let's start. So first of all, word meaning. As you can see here, 7 word meanings are only for the first man in a space. First, launched. Launched is प्रक्षेपण किया. प्रक्षेपण किया मतलब कि लॉन्च करना, जिससे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं. In this kind means कि sometime you have maybe you have seen or you have watched on TV that our scientists at some interval of time they just launch any rocket in the space to get the information regarding Earth. Okay, so that is launch. Second is rocket. You know very well rocket is rocket, as you know very well, you have seen also. Absolute is पूर्ण रूप से, as we can say ना, absolutely I will go there, that is पूर्ण रूप से. Weightlessness is भारहीन. ओके, जिसमें भार ना हो, जिसमें वजन ना हो, दैट इज भारहीन. रिस्क इज जोखिम. रिस्क यू नो वेरी वेल कि बोलते ना आई कांट बेयर द रिस्क, मैं रिस्क झेल नहीं सकता, या फिर आई कांट टेक दिस रिस्क. ओके, पोर्ट होल इज मूका, और यू कैन से मूका. मे बी यू हैव हर्ड दिस वर्ड for the very first time. So porthole, as you have seen in whenever we take a flight or whenever we take a ride in aeroplane, there you can see a window. That is window. Window is named as porthole. Okay, that is not simple window we can say, but it's a porthole beta. Okay, so if you visit or you take a ride in aeroplane, then don't say it's a window. Okay, mama, I will sit window side. Don't say window side. That is porthole, and the porthole is available, or it is in rocket also. Okay, through which we can see the outside view. Seventh, descent. Descent is उतार, means वापस आना. Okay, ऊपर से रॉकेट का नीचे वापस आना. Okay, that is descent. Now the lesson starts. First, the first man in space means, now you tell me, the question arises here beta, name the first person who went in the space. And you have heard this question several times also, and I hope you know the answer also of this question. है ना? Most of the students know the answer. Now please tell me, name the first person who went in space. Name the first person, not dog. Okay, you can tell me answer, and after that you can give me answer of these few questions also. What is space? Space क्या है? अंतरिक्ष क्या है? How can we travel in space? हम अंतरिक्ष में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? What happens to us when we are in space? और हमारे साथ क्या होता है जब हम स्पेस में होते हैं? So these answers, these questions are very easy, and you can tell me answer also, or you can pause video also. If you don't know the answers, then you can get this answer from the elder person who know the answer very well, from your elder sister, your brother, or any family member who knows these answers. You can get from them. Otherwise your teacher is here to tell you answers in online class also. Okay, so beta, these answers are very easy. स्पेस क्या होता है? मैं जैसे हम अर्थ पे ट्रैवल करते हैं, लाइकवाइज वी कांट ट्रैवल इन स्पेस. ऐसे हम स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, the clothes which I am wearing right now, I can visit in the space with the same wearing. No, it's not possible for me to visit there, because there means according to gravity. अगर आपको gravity नहीं पता होगा, ठीक है, तो स्पेस में मतलब हम ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते. वहाँ के लिए हमें बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, then only we can travel in space. Okay, now let's start the lesson.
So let's start. In the middle of the 20th century, the Russians and the Americans started working on the possibility of traveling in space. Possibility होता है बेटा अनुमान, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के मिडल में ही रशियंस और अमेरिकन्स ने स्पेस में ट्रैवलिंग के लिए का जो भी उन्होंने काम करना था उस पर उन्होंने अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया कि कितना मतलब कितना पॉसिबल है वहाँ पे जाना, कितना पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या हम इसमें ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर पहले हमें क्या भेजना चाहिए स्पेस में, तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। कब? रशियंस और अमेरिकन्स ने 20th सेंचुरी के मिडल में, मतलब बीच में लगभग। दे लॉन्च सेवरल रॉकेट्स विच वेट अराउंड द अर्थ अबव द टॉप ऑफ एयर, मतलब अर्थ के ऊपर, मतलब उन्होंने क्या करा, अर्थ के चारों तरफ उन्होंने बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया, रॉकेट भेजना लॉन्च किया, रॉकेट भेजे वहां पे, ठीक है, अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी से ऊपर की एयर में, उसे हम स्पेस बोलते हैं। द फर्स्ट रॉकेट्स कैरिड ओनली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, पहले जो रॉकेट भेजे थे वो सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी करके ले जा सकते थे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोले तो जैसे कि उसमें उन्होंने वो भेज दिए, सैटेलाइट भेज दिए, ठीक है, ताकि वो हर तरह हमें इंफॉर्मेशन दे दे दूसरी कंट्रीज की भी, ठीक है, दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मोस्टली उन्होंने वहाँ पे क्या भेजे बेटा, सैटेलाइट्स ही भेजी, सैटेलाइट्स के साथ में उन्होंने जो भी उनके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे उन्होंने वो भेजे। उसके बाद में लेटर मतलब बाद में, एनिमल्स वर सेंट, मतलब एनिमल्स को भेजा गया। फर्स्ट एक डॉग भेजा था पहले, ठीक है, उस डॉग का नेम आप सोचो क्या है उस डॉग का नेम, वो भी आप सर्च करना। द रशियन साइंटिस्ट वर देन रेडी टू सेंड अप अ मैन, उसके बाद रशियन साइंटिस्ट जो थे वो इतना रेडी हो चुके थे, वो इतना मतलब उन्होंने इतना पक्का कर लिया था कि वो अब एक आदमी वहां पे भेज सकते थे, किसी भी आदमी को वहां भेज सकते थे, मतलब उन्होंने सब कुछ रिसर्च कर लिया। दे चोज मेजर यूरी गागारिन टू बी द फर्स्ट कॉस्मोनॉट। अब उन्होंने किसको चूज किया, मेजर यूरी गागारिन, उनके कोई रशियन कमांडो कोई होगा, उसमें उन्होंने उनको यूरी गागारिन को वहां पे भेज दिया, जो कौन थे, फर्स्ट कॉस्मोनॉट। एक होता है एस्ट्रोनॉट और एक होता है कॉस्मोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो होते हैं कि ऐसे मैन को तैयार करना, किसी भी एजेंसी से, नासा से भेज दो या फिर कोई भी एजेंसी होती है स्पेस की, उनके थ्रू किसी मैन को तैयार करना और स्पेस में भेजना। लेकिन कॉस्मोनॉट होते हैं बेटा जो सिर्फ रशियन होते हैं, रशिया के जो होते हैं, रशियन टीम से जो होते हैं, ठीक है, जो एक इंसान जो रशियन टीम से ही हो, ठीक है, उनको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं। यूरी एलेक्सेविच, इसका नाम लिखना ऐसे पढ़ना ब्रेक करके, एलेक्सेविच। यूरी एलेक्सेविच गागारिन वॉज देन 27 years old। उस टाइम पे यूरी गागारिन ओनली 27 साल के थे जब उनको स्पेस में भेजा गया, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1934 इन द सिटी ऑफ स्मॉलेंस्क। वो उस टाइम पे 1934 में वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, रशिया की कोई सिटी है स्मॉलेंस्क, वहाँ उनका जन्म हुआ। हिज फादर वॉज अ कारपेंटर, उनके पापा एक कारपेंटर थे, ठीक है, कारपेंटर यू नो वेरी वेल, जो लकड़ी वगैरह की मेज वगैरह कुर्सियां बनाते हैं, बढ़ई जिसे बोलते हैं। When Yuri grew up, he joined the Russian force and trained as a jet aircraft pilot। जब यूरी गागारिन जो तब बड़े हुए थोड़े से, तो उन्होंने क्या करा, रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया और उनको किसके लिए ट्रेन किया गया, जेट एयरक्राफ्ट पायलट एज उनको ट्रेन किया गया, क्योंकि वो पहले पायलट थे, ठीक है, एयरफोर्स में, रशियन एयरफोर्स में। On April 12, 1961, early in the morning, Yuri was informed that he would fly in Vostok 1। उसके बाद में 12 अप्रैल 1961 में सुबह मॉर्निंग में यूरी को इन्फॉर्म किया गया कि वो वोस्टॉक 1 में फ्लाई कर सकते हैं। वोस्टॉक 1 क्या था उस टाइम का स्पेसक्राफ्ट का नेम, रशियन स्पेसक्राफ्ट का नेम वोस्टॉक, ठीक है। द फ्लाइट वॉज टू टेक ऑफ द सेम डे, और फ्लाइट उस दिन होनी थी, जिस दिन उनको पता लगा उस दिन ही वो फ्लाइट थी, उस दिन उनको जाना था स्पेस में।
यूरी हैड बीन गिवन वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग। यूरी को बहुत स्पेशल और बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग दी गई इस चीज़ के लिए, क्योंकि स्पेस में जाना इतना इजी नहीं है कि मैंने मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है और मैं स्पेस में चली गई। नो, इट्स नॉट ईजी लाइक ईटिंग फूड एंड रोमिंग हेयर एंड देयर। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ट्रेनिंग, okay, how to visit in space and what should we wear, how should we stay there, how should we breathe there, what happens if we do not breathe, what happens if we do not eat, okay, what happens if we do not tie ourselves properly। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं स्पेस में जाने से पहले। इतना इजी नहीं है स्पेस में जाना। He had to learn the use of scientific instruments in the spacecraft as well as about rockets। मतलब उनको क्या क्या लर्न करना पड़ा था, क्या क्या उनको याद करना पड़ा था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के बारे में, कि उनको कैसे यूज़ करना है, प्रयोग करना है स्पेसक्राफ्ट में। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? जिसके अंदर वो बैठ के हम भेजते हैं रॉकेट्स वगैरह में, ठीक है, रॉकेट वगैरह भेजते हैं तो उसको हम स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं। एज वेल एज अबाउट रॉकेट, और रॉकेट के बारे में भी। ही वॉज गिवन वेरी टफ फिजिकल ट्रेनिंग। उनको बहुत टफ फिजिकल ट्रेनिंग दी गई थी। फिजिकल ट्रेनिंग क्या बेटा? हमें रहने, जैसे कि कैसे हम रह सकते हैं वहाँ पर, बॉडी की ट्रेनिंग, कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए वहाँ पर, हमारी बॉडी कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग दी गई। बिकॉज इट वॉज नॉट नोन व्हाट द इफेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस वुड बी ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। क्योंकि ये उस टाइम पता नहीं था कि स्पेस में ट्रैवलिंग पे हमारे माइंड पर और बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। उस टाइम इतना पता नहीं था, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग दी गई थी। किनको? यूरी गागारिन को, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट इन द स्पेस। ही वॉज ट्रेन्ड टू गेट यूज्ड टू एब्सोल्यूट साइलेंस एंड टू रिमेन अलोन इन द डार्कनेस। उनको इसकी भी ट्रेनिंग दी गई थी कि वहाँ पे हमें बिल्कुल चुप कैसे रहना है, ठीक है, और डार्कनेस में भी, अंधेरे में भी अलोन कैसे रहना है, मतलब अंधेरा होगा वहाँ पे तो वहाँ पे अकेले में कैसे रहना है, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग। अगर आपको कोई इस डार्क रूम में या फिर आपको किसी फॉरेस्ट में वगैरह अकेला छोड़ दें और आपसे कहें कि आपको यहाँ पे 6 months 7 months यहाँ पे स्पेंड करने हैं, कैन यू स्पेंड इजीली देयर? नो, ओके, इट विल अफेक्ट, श्योरली इट विल अफेक्ट योर माइंड, योर बॉडी ऑल्सो, ओके, इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू टू सर्वाइव देयर इन द अलोन, इन द डार्कनेस ओनली, अलोन, वो भी अकेले, ओके। तो उनको इस चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी गई थी। यूरी फाउंड दिस क्वाइट डिफिकल्ट। यूरी को लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये जॉब तो मेरे लिए। ही सेड लेटर, उन्होंने बाद में क्या कहा, देयर वाज नो साउंड, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट रशल। उन्होंने बताया जब वो स्पेस से वापस आ गए कि वहाँ पे बिल्कुल भी साउंड नहीं थी और बिल्कुल भी सरसराहट, थोड़ी भी आवाज़ वहाँ पे, रसल मतलब क्या होती है, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी खड़खड़ाहट, थोड़ी सी भी आवाज़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। नो मूवमेंट ऑफ एयर, ना ही हवा की कोई वो थी, मूवमेंट थी, कुछ भी नहीं था। जैसे अभी हम स्पेस, अभी हम अर्थ पर हैं, तो आप फॉरेस्ट पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वहाँ पे आवाज़ें आती रहेंगी आपको, वो तो आती रहेंगी। कभी हवा की आवाज़ आएगी, कभी यहाँ पे रेन हो जाएगी, कभी जंगलों में ही मतलब पेड़ पत्तों की आवाज़ें आएंगी, या फिर किसी जानवर की आवाज़ आएगी। लेकिन अब आप मून की बात कर रहे हो या फिर आप किसी और प्लैनेट की बात कर रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, कुछ भी आवाज़ नहीं थी। He spent this time reciting poetry to himself. So see, it's a very amusing for you. बहुत entertaining है आपके लिए कि उन्होंने वहाँ पे कैसे टाइम बिताया, पोइट्रीज पढ़ के। उन्होंने खुद को ही पोइट्री सुनाई। कहाँ क्या सुनाई? उन्होंने खुद को ही पोइट्री सुनाई, उन्होंने खुद को ही गाने सुनाए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कविताएं सुनाई खुद को ही उन्होंने। तब उन्होंने अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस वॉज गिवन इन इंटरेस्टिंग वे। अब उन्होंने बताया, इसका भी एक वे बताया, इंटरेस्टिंग वे बताया कि भारहीन होना कितना इंटरेस्टिंग था उनके लिए। वेट ना होना उनके अंदर, मतलब कि वहाँ जाके वेटलेसनेस हो गए थे वो, बिल्कुल उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि वेट है ही नहीं, वो हवा में उड़ने लग रहे थे वहाँ पे। द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वाज यूज्ड टू गिव हिम अ ड्रॉप ऑफ 500 feet एट अ हाई स्पीड। मतलब कि उस टाइम पे जो लिफ्ट थी, ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी की जो लिफ्ट थी, वो उनको ऊपर से नीचे ड्रॉप देती थी 500 feet का स्पीड का, 500 feet एट हाई स्पीड, इतना वो ड्रॉप देती थी उनको ऊपर से नीचे डालने में, मतलब स्पेस में ही। ही फाउंड हिमसेल्फ हैंगिंग बिटवीन द फ्लोर।
So your today's homework is do word meaning in English notebook as well as read the lesson. Okay, so this is your today's homework. Bye bye everyone.